Now we go to the other book, which is The Game of Life. हाँ जी, दिशांत पस्सी पढ़ रहे हैं. Are you there on the call? Yes, ma'am. Jesus Christ said, "Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation." Lot's wife looked back and was turned into a pillar of salt. The robbers of time are the past and the future. Man should bless the past and forget it. If it keeps him in bondage and bless the future, knowing it has in store for him endless joys, but live fully in the now. For example, a woman came to me complaining that she had no money with which to buy Christmas gifts. She said, "Last year was so different. I had plenty of money and gave lovely presents. And this year, I have scarcely a cent." I replied, "You will never demonstrate money while you are pathetic and live in the past. Live fully in the now and get ready to give Christmas presents. Dig your ditches and the money will come." She exclaimed, "I know what to do. I will buy some tinsel twine, Christmas seals, and wrapping paper." I replied, "Do that, and the presents will come and stick themselves to the Christmas seals." This too was showing financial fearlessness and faith in God, as the reasoning mind said, "Keep every cent you have, as you are not sure you will get any more." She bought the seals, paper, and twine, and a few days before Christmas received a gift of several $100s. Buying the seals and twine had impressed the subconscious with expectancy and opened the way for manifesting money. She purchased all the presents in plenty of time. Who looks outside dreams, who looks inside wakes. C.G. Jung. So this is one of the experience where Jesus Christ ने भी ये बोला है that power now में ही होती है. Because past हमको रॉब कर लेता है खुशियों से. Because as mentioned that past में से mostly unpleasant experiences लोग होल्ड करते हैं क्योंकि उनमें इमोशनल स्केल बहुत ज्यादा होता है. सो इसीलिए पीछे मुड़ के मत देखो. Again and again we keep repeating the fools look back. So we are not fools. Okay, we will not look back. जिंदगी में जो हो गया उस पे मिट्टी पाओ, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो. ठीक है, जो हो गया, जो जैसा था, इट रियली डजेंट मैटर. चाहे कितना भी ट्रॉमेटिक पास था, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हुई जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट थी, कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपने बहुत दुख पाया, आपको खुशियां नहीं मिली, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, आपके साथ बैड रिलेशनशिप्स हुई हैं, इट रियली डजेंट मैटर. पावर इज इन द नाउ ओनली. फ्यूचर के बारे में भी वरी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्यूचर आप इस वक्त क्रिएट करते हो. इन दिस न्यूरो साइंस वॉट एवर यू थिंक राइट नाउ इज वॉट यू क्रिएट. If I'm creating that, thank you for amazing abundance constantly flowing to my life like a glacier, है ना, जैसे ग्लेशियर वाटर है, लगातार आता रहता है, लगातार आता रहता है. अगर मैं ये सोच रही हूँ कि कांस्टेंट अबंडेंस मेरी जिंदगी में आ रही है और मेरे पास जो जितने पैसे हैं, घर है, परिवार है, दोस्त हैं, बहुत सारी हवा है सांस लेने के लिए, जब मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ तो मैं अपने आप मैंने अपना फ्यूचर क्रिएट कर लिया. तो मुझे वरी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्यूचर तो इस वक्त क्रिएट हो रहा है. अगर मैं अभी वरी करूंगी, फियरफुल होंगी, तो आई विल क्रिएट द सेम फ्यूचर विच विल बी वरीसम एंड फियरफुल क्योंकि मेरी वाइब्रेशन के कारण वॉट एवर आई एम राइट नाउ आई विल अट्रैक्ट. सो आई कैन चूज वॉट आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन द फ्यूचर. है ना. सो फ्यूचर हम डिफाइन करते हैं. बार बार लगातार मैं बोलती हूँ कि कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को, जन्म पत्री को नहीं उठा के देखो. उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता. जब आप पैदा हुए थे वो पिछले जन्म के आपके कार्मिक अकाउंट्स उसमें लिखे हुए हैं, उस बेसिस पे चार्ट के हिसाब से आपको वो लिखा गया है. आप उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ये साइंस होती है ना. अभी जो इस वक्त जो कर्म कर रहे हो, ऐसे थोड़ी गौतम बुद्ध ने लिखा हुआ था कि कितने जन्मों जन्मों के कर्म आप इस वक्त के माइंडसेट से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो.
है, ऐसे ही थोड़ी लिखा था, इन सब की बातें बहुत सत्य वचन होती हैं. So it is not that they would just write anything. So it holds highest truth that right now, what are you thinking is deciding your next moment. ओके, दिस इज वॉट इट इज अबाउट. ये जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा था, जो अभी दिशान ने पढ़ा था, वहीं से शुरू किया था पढ़ना. और यही चीज हमने अभी देखी है. तो इसमें एक एक्सपीरियंस है एक फीमेल का, जो कहती थी कि पिछले साल मेरे मेरे पास बहुत पैसे थे और बहुत अबंडेंस थी और मेरे पास गिफ्ट्स आ रहे थे. इस बार ना मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास कोई गिफ्ट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा. वो गई यहाँ पे ऑथर के पास, फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास. उन्होंने अपनी दुविधा बताई that I don't have money and I'm not receiving any gifts. Last time I have all my money is lost. I don't have any money this year. Like I'm very poor and I don't have. फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने उनको यही बोला कि तुम्हारे पास इतना पैसा तो है ना कि तुम क्रिसमस की कुछ चीजें खरीद लो, रैपिंग पेपर्स खरीद लो, किसमें तुमको डाल के देना है ना, क्रिसमस शिन्स खरीद लो, ये सारी चीजें खरीद के रखो कि तुमको लोगों को देना है क्रिसमस गिफ्ट्स. तुम ये मत सोचो कि तुमको मिलना क्या है, तुम ये सोचो तुमको देना क्या है. और जब तुम ऐसे करोगी तो सारे पेपर वेपर सब खरीद के रख लो तुम, कि तुमको कौन से बॉक्सेस में, कौन से बैग्स में क्रिसमस गिफ्ट्स डाल के देने हैं. डू ऑल ऑफ दैट एंड देन द मनी विल कम. थिंक अबाउट गिविंग. तो शी वेंट दिस गर्ल. ओके, पहले तो उसको वो फेयरलेसनेस आ रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट सेंट्स मेरे बचे हुए हैं, मतलब कम पैसा है मेरे पास अभी और वो सारा मेरा खर्च हो जाएगा गिफ्ट्स खरीदने में. तो फिर वो होता है ना फाइनेंशियल फियर. फियर जो होता है, फाइनेंशियल फियर था इसको, दिस वर्ड इज यूज्ड हियर, कि उसको फाइनेंशियल फियर था. तो फाइनेंशियल फियर था कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे और मेरे पास आ बिल्कुल नहीं रहे और इस वक्त तो मेरे पास पैसे ही नहीं है. शी ओवरकेम दैट फियर. शी वेंट अहेड, उसने सारे प्रेजेंट्स प्रेजेंट सब खरीदे एंड फाइनली उसके पास, उसके पास थाउजेंड, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आ गए. शी रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स बिफोर क्रिसमस एंड एवरीथिंग. तो इसमें लिखा था कि जब उसने वो खरीदा था क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए, तो उसके मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेंसी उसके साथ हो गई थी ना, कि यस आई हैव मनी, तभी तो आप खर्च करते हो कुछ. तो वो उसने किया एंड दैट ओपन द वे ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन, है ना. फिर उसके बाद पैसे खूब आए और उसने सबके लिए प्रेजेंट्स परचेज किए, बिकॉज शी परचेज्ड ऑल द प्रेजेंट्स इन प्लेंटी ऑफ टाइम. मतलब वे इन एडवांस आ गया था. कहते हैं ना दैट गॉड इज नेवर टू लेट. ये वाला हमने एफर्मेशन था ना, जो मुझको मुझको 100 टाइम्स जो एफर्मेशन पढ़नी थी, जो मैंने यही वाली चूज की थी, है ना, दैट गॉड इज नेवर टू लेट. सो एंड ही ऑलवेज कम्स, लाइक कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये लेट तो नहीं हो जाएगा, कब आएगा. एंड इज ऑलवेज ऑन टाइम, है ना. इन गॉड्स किंगडम ही इज नेवर लेट एंड इज ऑलवेज ऑन टाइम. एंड विथ हिम एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये अफर्मेशन था. सो समय से पैसे आ गए और उसने सबको गिफ्ट्स दिए. दैट इज व्हाट इट इज. तो इसीलिए अंदर झांक के देखो कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी प्रॉब्लम्स आती है. हाँ जी. Man must live suspended in the moment. Look well. Therefore, to this day, such is the salutation of the dawn. He must be spiritually alert, even awaiting his leads, taking advantage of every opportunity. One day I said continually, Infinite Spirit, don't let me miss a trick. I unquote. And something very important was told to me that evening. It is most necessary to begin the day with right words. Make an affirmation immediately upon waking. For example, Thy will be done this day. Today is a day of completion. I give thanks for the perfect day. Miracle shall follow miracle, and wonders shall never cease. या सो अब ये एफर्मेशन का कोई स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं. बहुत अच्छा एफर्मेशन है. टुडे इज अ डे ऑफ कंप्लीशन. सारी चीजें अचीव, ओवर अचीव हो जाएंगी. आई गिव थैंक्स फॉर दिस परफेक्ट डे. तो सुबह सुबह ही एडवांस में आप परफेक्ट डे को थैंक यू, आपने डे को ही परफेक्ट बना दिया है बाय एडिंग द परफेक्ट डे, है ना. एंड आई गिव थैंक्स फॉर दिस परफेक्ट डे.
मिरेकल शैल फॉलो मिरेकल, मतलब चमत्कार होता है मिरेकल, जादू भी नहीं होता। जादू के ऊपर एक शब्द होता है जिसको मिरेकल बोलते हैं, इट्स मोर देन मैजिक, राइट? सो मिरेकल शैल फॉलो मिरेकल एंड वंडर्स शैल नेवर सीज, और वंडर्स रुकने नहीं बंद होंगे, इतने वंडर्स आएंगे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एफर्मेशन टू डू, वी कैन ऑल राइट इट इन आवर हैंड राइटिंग वंस वी आर डन विद द सेशन टुडे। रोज 3 बार भी इसको लिख लें तो हमारा टैटू बन जाएगा दिमाग में। Make this a habit, and one will see wonders and miracles come into his life. One morning, I picked up a book and read, "Look with wonder at that which is before you." I unquote. It seemed to be my message for the day, so I repeated again and again, "Look with wonder at that which is before you." At about noon, a large sum of money was given me, which I had been desiring for a certain purpose. In a following chapter, I will give affirmations that I've found most effective. However, one should never use an affirmation unless it is absolutely satisfying and convincing to his own consciousness. And often, affirmative and often an affirmative is changed to suit different people. For example, the following has brought success to many. I have a wonderful work in a wonderful way. I give wonderful service for wonderful pay. I gave the first two lines to one of my students and she added the last two. It made a most powerful statement, as there should always be perfect payment for perfect service, and a rhyme sinks easily into subconscious. She went about singing it aloud and soon did receive wonderful work in a wonderful way and gave wonderful service for the wonderful pay. वन सेकंड, जस्ट टेक अ पॉज। दिशांत, ये तुम सारा पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ना? यस मैम, है मैं ना? आज ही एक से एक गाना वर्ड शुरू। मैं यही सोच रही थी। मतलब इट इज सो मच इन सिंक विद, सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एफर्मेशन वी हैव गॉट। लाइक सुबह सुबह जब डे स्टार्ट करो, सो यू हैव टू से दैट आई गिव थैंक्स फॉर द परफेक्ट डे। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना सा बोलना, इतना सा बोलने में कितना टाइम लगेगा? आई गिव थैंक्स फॉर द परफेक्ट डे, मतलब डे परफेक्ट है। देन मिरेकल्स फॉलो मिरेकल्स टुडे, मतलब एक मिरेकल दूसरे मिरेकल को फॉलो करता है, पूरे दिन मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं और सब कुछ वंडरफुल होता है। ठीक है, बस इतना सा सोचना। और ऑफ कोर्स एफर्मेशन आई थिंक पूनम आपने लिखी दी है अभी, दिख रहा था यहाँ पे, मैंने, मेरा व्हाट्सएप भी साथ में खुला रहता है। हाँ सो जी मैम। तो वो थैंक यू सो मच, साथ साथ एवरीबडी सो क्विक। सो वो आ गई। अब आप रोज सुबह अगर हाथ जोड़ के आंख बंद करके अगर ये बोल दोगे दैट आई गिव थैंक्स फॉर माय परफेक्ट डे, मैं परफेक्ट डे के लिए धन्यवाद देती हूँ। एक चमत्कार दूसरे चमत्कार को फॉलो करता है और सब कुछ बहुत वंडरफुल चीजें मेरी नजरों के सामने आती हैं। दैट वंडरफुल थिंग्स अपीयर बिफोर माय आईज। और दूसरी एक एफर्मेशन सक्सेस के लिए इन्होंने दी है ना, जो ये वाली थी। दोबारा पढ़ोगे आप दिशांत? I have a wonderful work in एक, a wonderful way. I give wonderful service for the wonderful pay. या कितना अच्छा है ये, आई हैव अ वंडरफुल वर्क। तो इसके कारण लेडी को वर्क मिल गया, उसके पास काम नहीं था करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस है एक लड़की का हु वाज लुकिंग फॉर सम ग्रेट वर्क एंड शी वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। देन शी वेंट टू फ्लोरेंस कॉवलशिल, तो फ्लोरेंस कॉवलशिल ने सिर्फ 2 ही वर्ड उसको बताए, दैट आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे। इसके आगे का नहीं बताया था उसको। उसने अपने आप को राइम करके सूट करने के लिए उसने ऐड किए ये दोनों, आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। ठीक है, तो अब ये 4 सेंटेंस का एक सेंटेंस बन गया। आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे। सो आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे, आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। तो मतलब मैं सर्विस भी बहुत अच्छी दे रही हूँ, मुझे पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है जो राइम भी करती है, और राइमिंग के कारण इट बिकम्स लाइक अ सिंगिंग, नो मतलब ऐसे उस तरह से। सो इट सेटल्स इनटू द सबकॉन्शियस माइंड वेरी इजीली।
तो ये उन्होंने बताया है कि इस वाली एफर्मेशन से फ्लोरेंस कॉवल्शन बोल रही हैं कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा सफलता जिंदगी में मिली है, दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस। ओके, सो दिस इज व्हाट शी सेज। देन शी सेज दैट वो कह रही हैं कि मैं आगे वाले चैप्टर में बहुत सारे एफर्मेशंस दूंगी जो बहुत वर्क किए हैं मेरी जिंदगी में। दैट इज व्हाट शी सेड, दैट आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ एफर्मेशंस दैट हैव वर्कड इन माय लाइफ, एंड बट यू कैन सूट इट अकॉर्डिंग टू योर लाइक योर रिक्वायरमेंट। जैसे कई बार होता है ना, आई एम सुपर हेल्दी वेल्दी रिच। सो अगर आप हेल्दी वेल्दी रिच नहीं हो तो आपको वो एफर्मेशन रेजोनेट नहीं करेगी, है ना। आपको लगेगा दिस इज नॉट रियली गोइंग, आई एम नॉट हेल्दी वेल्दी एंड रिच, व्हाई विल आई कीप रिपीटिंग, सो इट लुक्स लाइक अ लाई। So it should not look like a lie. So what you can do is, I'm getting healthier, wealthier, and richer day by day. Now this looks very resonating, that my money is constantly increasing. I am a billionaire नहीं सूट हो रहा है ना, नहीं सिंक हो रहा है, it is not resonating with who we are, that I'm a billionaire, because we may not be billionaires. Okay, but if you say that my income is increasing constantly, now it is resonating, where we are not really saying that I'm a billionaire. So she's saying that you can suit it for your requirement. It is not that आपको अगर वो resonate नहीं हो रही है आपको, तो किसी की बताई हुई चीजों पे आप वो मत करो, है ना। सो आई कैन ऑल्सो, लाइक जब हम पढ़ेंगे वो वाला पार्ट ऑफ द बुक, आई कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दैट फॉर you know that किस तरह से resonate, because since I know most of us, we are all in the same boat mostly. So we will align and we will make the affirmation in such a way that it will, that every day my body is healing, so that way now this is not in conflict. You can't say I'm super healthy. Jab 10 problems are there, the blood sugar is going haywire, this is going wrong, that's going wrong, then you cannot say that I'm super healthy. I'm like, it will look very, very robotic. It will not look real. So you want it to be real, then you can say that my body is healing on a daily basis and I'm getting better and better. The divine healing power flows through my body and healing every cell day by day. Now, this looks very resonating. अगर हम इस तरह से बोलेंगे ना, भगवान की शक्तियां मेरे हर एक सेल पे काम कर रही है और मुझे हील कर रही है रोज, और रोज मुझे अच्छा लगता जा रहा है, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। So this is what she has said. Then it is ओके, सो अब एक और एफर्मेशन है बिजनेसमैन के लिए क्योंकि वंडरफुल वर्क, तो बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, दिशांत पढ़ दो, देन विल हैव टू रैप अप। अनदर Okay. स्टूडेंट। Another student, a businessman, took it and changed the word work to business. He repeated, I have a wonderful business in a wonderful way, and I give wonderful service for the wonderful pay. That afternoon, he made a $41,000 deal. Through there had been no activity in his affairs for months, though there had been no activity in his affair for months. So every affirmation must be carefully worded and completely cover the ground. Yeah, so this is how much we are going to study today. Thank you so much, Dishant. It's always wonderful to hear your voice. That vibe of a youth reading it. So it's absolutely wonderful. और तुम्हारी Thank you, ma'am. playfulness across आती है इसमें। Yes, ma'am. सो दिस इज फॉर बिजनेस पीपल, है ना, जिनका वर्क है उनके लिए वर्क वाला एफर्मेशन आ गया, और जिनका बिजनेस है उनके लिए आई हैव अ वंडरफुल बिजनेस इन अ वंडरफुल वे। बहुत अच्छे तरीके से मेरा बिजनेस है, एंड आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट मार रहे हो बिजनेस में, यू आर एक्सपेक्टिंग कि खूब सारा आ जाए, करना कुछ ना पड़े, ऐसे नहीं, है ना। आई गिव अ वंडरफुल सर्विस फॉर वंडरफुल पे, तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। एंड दैट आफ्टरनून, ये वाला जो बंदा था जिसने ये वाला अफर्मेशन को बोला, लिखा, ही रिपीटेड का मतलब ओवर एंड ओवर अगेन। सो ही रिपीटेड दिस, एंड दैट आफ्टरनून ही मेड $41,000 डील। सो हम भी आज बहुत सारा कमाते हैं ये वाला बोल बोल के, ठीक है। ये दो एफर्मेशंस हैं, दोनों हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, एक बिजनेस का है एक उसका है। सो एक दिन में पैसे कमाने का जरिया है ये, बट अपने आप को बहुत अच्छे जोन में पूरे दिन रखना, है ना। लेट पीपल डू एनीथिंग अराउंड यू, यू स्टिल हैव टू बी ग्रेटफुल। अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, रिमेंबर दैट। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मीन्स
or through all the ups and downs of the day, you have to be grateful throughout the day. So when you're in that vibration and you're constantly chanting, repeating, I have wonderful work in a wonderful way and I give wonderful service for a wonderful pay, and let us share experiences if we receive any money today. So you have to give and receive, है ना, इसमें भी लिखा हुआ है, give and receive. That is how life changes. And he received $1,000 deal, though there had been no activity in his affairs for months. बहुत महीनों से उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, और उसके साथ फिर ऐसा हुआ दैट इसमें, तो इसीलिए इट सेज दैट एवरी एफर्मेशन मस्ट बी केयरफुली वर्डेड, है ना, पावर ऑफ द वर्ड्स जो होता है, एंड कंप्लीटली कवर द ग्राउंड दैट वे. कल एक और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, वंडरफुल सर्विस फॉर वंडरफुल पे. So that is all we have today. Thank you so much.